Good morning, students. In our last class, we have discussed the series and parallel combination of resistors, right? Then we have seen some very simple numericals that are based on the series and parallel combination. Now, today we are going to solve some of the examples of your NCRT, of your book, the NCRT. So today we are starting with the very first numerical of today's class, that is the example number 17.2. Okay, आपकी NCRT का example number 12.7, that numerical we are going to solve now. Okay, so in that question a circuit diagram is given to you in which one resistance and one bulb, they are connected in series, right? As we can see in the diagram that this resistor and the bulb are connected in the series. The resistance of the resistor is 4 ohm while the resistance of the bulb is 20 ohm. um, Also in the circuit you are having a battery of potential difference 6 volt, and to measure the current you have connected an ammeter here, and the supply of electric current can be controlled by using a key K, right? So this much information is given to you through this circuit diagram. Now basically we have to find out three things in this question, that is the total resistance, then the total current, also the V across bulb and resistor, that is the potential across the bulb and the resistor. So सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, राइट? So whatever the things given to us in the question, that all we are noting down here. सबसे पहले हमारे पास R1 है, that is the resistance of this resistor, that is 4 ohm. तो हमने यहाँ पे R1 की वैल्यू लिख ली 4 ohm. देन बल्ब के रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं R2 और वो कितना हो गया 20 ओम, राइट? टोटल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इज गिवन टू अस, दैट इज 6 वोल्ट, सो V इज इक्वल टू हो गया 6 वोल्ट. ओनली दीज थिंग्स आर गिवन टू अस. नाउ हमको निकालना क्या है, टोटल रेजिस्टेंस दैट इज R, टोटल करंट दैट इज I, एंड द V अक्रॉस बल्ब एंड रेजिस्टर, दैट इज हमको VR की वैल्यू निकालनी है और VB की वैल्यू निकालनी है, दैट इज द पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर एंड बल्ब. तो ये सारी चीजें हमको फाइंड आउट करनी है, तो हमने ये सारी चीजें लिख ली, दैट वी हैव टू फाइंड आउट ऑल दीज थिंग्स. सबसे पहले हम फर्स्ट वाले के लिए सॉल्व करते हैं, दैट इज टू फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस. स्टूडेंट्स एज यू कैन सी कि ये जो रेजिस्टर है और ये जो बल्ब है, they both are connected in series. So what is the resultant if these two are connected in series? We know that series combination of resistor में दोनों resistors क्या हो जाते हैं, simply add हो जाते हैं. So R is equal to R1 plus R2. This thing we have got. Now यहाँ पे values put कर देते हैं. So what do we get from here? R1 की वैल्यू हो जाएगी 4 ohm plus R2 की वैल्यू हो जाएगी 20 ohm, and 4 plus 20 is 24 ohm. So the total resistance in the circuit is 24 ohm. That is जो total resistance है वो जाएगा 24 ohm, because this 4 ohm and 20 ohm are connected in series with each other. Now अब हमको निकालना है total current. So we know that students, by Ohm's law V is equal to IR, right? ये चीज हमारी हमको क्लियर है दैट V इज इक्वल टू IR, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, राइट? यहाँ पे हमारे पास V की वैल्यू है दैट इज 6, आपको पोटेंशियल की वैल्यू क्लियर है 6 वोल्ट. I करंट हमको निकालना है, सो वी हैव रिटन इट एज इट इज हियर. और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 24, तो आई हैव रिटन इट 24 हियर. सो यहाँ से I की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6 अपॉन में 24, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 6 1 जा 6, 6 चौक 24, इट इज 0.25 एम्पियर. So the total value of current flowing through the circuit is 0.25 एम्पियर, जो आपके पास आ गई है बाय ओम्स लॉ, राइट? ओम्स लॉ में ओम्स लॉ से अगर हम सॉल्व करें, सो वी हैव गॉट दिस value. Now students, the third part we have to solve, that we have to find out the potential across the bulb and a
रेजिस्टर। सो अगर हम बल्ब की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा VB इज इक्वल टू IB IRB। जो करंट है वो तो सेम रहेगा क्योंकि हमको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो तो उसकी वैल्यू सेम ही रहती है, राइट। सो VB इज इक्वल टू IRB। हमारे पास I की वैल्यू है तो वी हैव रिटन I की वैल्यू हियर इनटू RB, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना है 20, सो आई हैव रिटन 20 हियर। यहाँ से आपने डेसिमल हटाया, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल, 5 5 जा 5 2 जा, 2 से 2 कैंसल, सो व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम हियर, आई हैव गॉट 5 वोल्ट, राइट। सो बल्ब का जो रेजिस्टेंस, बल्ब के अक्रॉस जो पोटेंशियल हो जाएगा दैट विल बी 5 वोल्ट। अब हमको निकालना है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल के लिए हमने फॉर्मूला लिख लिया, VR इज इक्वल टू IR इंटू R, राइट। जिसको हम R2 से डिनोट कर रहे हैं, जिसको हम R1 से डिनोट कर रहे थे यहाँ पे, इसलिए हम इसको R1 लिख लेते हैं। सॉरी, दिस वाज R2 बल्ब वाला और रेजिस्टेंस वाला R1, सो आई हैव रिटन इट R1 हियर, ओके। बल्ब वाला आपने R2 से डिनोट किया था, इसलिए आप उसको RB नहीं लिख के R2 लिख लो, इट इज फॉर जस्ट कन्वीनियंस। नाउ करंट की वैल्यू हो जाएगी 0.25 इंटू R1, दैट इज हमारा पहला वाला रेजिस्टेंस, दैट इज 4। यहाँ से आपने डेसिमल हटाया, नीचे 2 जीरोस लग गए, 25 4 जा 100 एंड 4 से 4 कैंसल, तो यू विल गेट 1 वोल्ट हियर। इट मीन्स द पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 1 volt, right? The potential across the resistance is 1 volt. This thing we have find out. So in this way we can solve this numerical. That is, we can find out the value of total resistance, total current, and the potential across all the resistances that are connected in the circuit. Okay. Now we are going to see some more numericals that are based on this pattern only. Now the next question that is given to us is here, that is the example number 12.8 of your NCERT. आपकी NCERT का question example 12.8 we are going to solve here. So in that question a circuit is given to you. In this circuit हमारे पास 3 resistances हैं, 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm, right? इन तीनों resistors की अलग अलग value है। All these 3 resistors are connected in parallel to each other, as we can see it. ये तीनों resistors एक दूसरे के parallelly connected हैं। Now इन resistors को उन्होंने एक बैटरी की हेल्प से कनेक्ट किया हुआ, एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ विद द हेल्प ऑफ अ की, और यहाँ पर एक अमीटर, एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, सो दैट वी कैन मेजर द पोटेंशियल एंड करंट, राइट। ऑलवेज अमीटर सीरीज में लगेगा और वोल्ट मीटर पैरेलल में लगेगा, दिस थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड। नाउ यहाँ पे आपको 3 चीजें निकालनी है। फर्स्ट वन, द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस करंट निकालना है, टोटल करंट निकालना है, और थर्ड वन टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट में। वन बाय वन हम तीनों क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले सब लिख लेते हैं दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो गिवन है दैट इज R1, R2, R3 की वैल्यू 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम, राइट। ऑल्सो हमारे पास बैटरी का पोटेंशियल गिवन है, बैटरी का पोटेंशियल हो गया 12 वोल्ट। इसके अलावा हमको कोई भी चीज फिगर में देख के समझ में नहीं आ रही है। अब जो चीजें निकालनी है वो लिख लेते हैं। टोटल करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, मतलब हमको निकालना है फर्स्ट वाले रेजिस्टर के लिए करंट, सेकेंड वाले रेजिस्टर के अक्रॉस करंट, इसको हम I1, I2, I3 लिख लेते हैं। I1, I2, I3, हमको तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस करंट निकालना है। फिर हमको टोटल करंट निकालना है, टोटल करंट को हम लिख लेते हैं I। देन हमको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस दैट इज कैपिटल R। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ओके। सो वन बाय वन हम सारी चीजों के लिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट
ए पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं, दैट इज द करंट थ्रू ईच resistor, right? So students, you know that when the resistors are connected in parallel with each other, then since they all three of them are directly connected with the battery, so the potential of all the three resistances is same, right? Since ये तीनों resistors directly बैटरी से connected हैं, इसलिए इन तीनों का potential जो होगा वो same होगा, और हम मान लेते हैं इन तीनों का पोटेंशियल है V, that is 12 volt. Its value is constant. Okay? So सबसे पहले निकाल लेते हैं हम I1 की वैल्यू. So we know that V is equal to IR. हमको निकालनी है I की वैल्यू, तो I is equal to हो जाएगा V upon R. यहाँ पे हम फर्स्ट वाले के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा I1 is equal to V upon में R1, राइट? V कांस्टेंट है, इसलिए आपको उसको V1 नहीं लिखते हुए हम V ही लिखेंगे, और V कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि तीनों रेजिस्टर्स डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड हैं, राइट? नाउ I1 की वैल्यू, I1 इज इक्वल टू हो जाएगा V की वैल्यू दैट इज 12 डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू दैट इज 5. सो वी हैव गॉट द करंट फ्लोइंग थ्रू द फर्स्ट रेजिस्टर इज I1 की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ से 2.4 एम्पियर. ओके, तो फर्स्ट वाले रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट हमारा निकला है दैट इज 2.4 एम्पियर. नाउ सिमिलरली अगर मैं I2 की वैल्यू निकालना चाहूँ, सो द फॉर्मूला विल बिकम I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2. सो I2 इज इक्वल टू V की वैल्यू 12, R2 की वैल्यू 10. जब आपने इसको डिवाइड किया, सो यू हैव गॉट 1.2 एम्पियर, राइट? 12 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे, सो वी हैव गॉट 1.2 एम्पियर. दैट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच ऑफ द सर्किट इज 1.2 एम्पियर करंट. ओके, सिमिलरली आप थर्ड ब्रांच के लिए भी निकाल सकते हो, दैट इज I3 इज इक्वल टू V अपॉन में R3. V की वैल्यू 12, R3 की वैल्यू हो गई 30, इट इज 0.4, राइट? I3 आ जाएगा आपका 0.4 एम्पियर. सो इन दिस वे स्टूडेंट्स वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I1, हाईलाइट कर देते हैं, I2 एंड I3. नाउ अब हमसे वो क्वेश्चन में बी पार्ट में पूछ रहे हैं. यहाँ से हमारा ए पार्ट क्लियर हो गया. उन्होंने सारे रजिस्टर के अक्रॉस करंट निकालने के लिए बोला था, एंड वी हैव फाइंड आउट I1, I2 and I3, that is the value of current flowing through all the resistors, right? Now हमको निकालना है total current in the circuit. इस सर्किट से टोटल जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, that we have to find out. So how we can find it out, that we are going to see now. The total current, we know that total current कितना होगा इन सब इंडिविजुअल करंट्स का अगर मैं सम कर लूं, तो that will be the total current flowing through the circuit. This we have seen in the derivation when we have done the derivation of combination of parallel combination, right? तो अगर अब हम इसको सॉल्व करें, सो I1, I2, I3 की वैल्यूज पुट कर देते हैं. I1 की वैल्यू हो गई 2.4, I2 की वैल्यू हो गई 1.2 एंड I3 की वैल्यू हो गई 0.4. हमारे पास इन तीनों की वैल्यूज आ गई. वी हैव पुट द वैल्यूज ऑफ हियर, वी हैव पुट द वैल्यूज हियर. नाउ ऐड कर लेते हैं. 4 4 8 9 10, 2 1 3 और 1 4, 4.0. That is the total current flowing through the circuit is 4.0 ampere, or you can simply write it as 4 ampere, right? तो total current circuit में से कितना flow हो रहा है, that is 4 ampere current. I hope it is clear to all of you. Now the third and the last part of the question, that is we have to find the total resistance in the circuit. Okay, so we know that when the resistors are connected in parallel with each other, so हमारे पास formula होता है 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. This formula is clear to all of you, I hope. यहाँ पे हम R1, R2 और R3 की वैल्यूज पुट कर देते हैं. So we have got from here R1 की वैल्यू हो गई 5, R2 की वैल्यू हो गई 10 एंड R3 की वैल्यू हो गई 30. हमने तीनों वैल्यूज पुट कर दी. यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ, सो आई हैव गॉट 30 इन द डिनोमिनेटर. 5 6 are 30, सो यहाँ पे हमने लिख दिया 6.
10 3s are 33 and 31s are 30 is 1, right? So यहाँ पे आ जाएगा 10/30, 0 से 0 कैंसिल, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/r। अगर हम इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर दें, सो आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ r दैट इज 3 ओम, राइट, 3 ओम। इसका मतलब हमको टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट मिल गया दैट इज 3 ओम। और इस तरीके से हमने तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए इस क्वेश्चन के, दैट इज वी हैव फाइंड आउट द टोटल resistance across total current across each resistor, then total current in the circuit, और फिर total resistance of the whole circuit. I hope it is clear to all of you. In this way we can solve the numericals that are based on the combination of series and parallel combination of resistors. Okay, now we are going to practice some more numericals that are based on the combination only, and the next question is now we are going to solve the next question, that is the example number 12.9 of your NCERT. Now students, in this question a circuit is given to us. यहाँ पे हमको एक circuit given है जिसमें they have used 5 resistors R1, R2, R3, R4 and R5. इस तरीके से उन्होंने 5 resistors यूज किए हैं। हमको निकालना है total resistance of the circuit. Also we have to find the total current that is flowing through the circuit. आपको इन पांचों रेजिस्टर्स की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। इसके अलावा जो टोटल पोटेंशियल है बैटरी का दैट इज ऑल्सो गिवन हियर, दैट इज V, राइट। सो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर गिवन है, वी हैव रिटन हियर गिवन। हमको दो चीजें फाइंड आउट करनी है, टोटल रेजिस्टेंस दैट इज R और टोटल करंट दैट इज I की वैल्यू, राइट। ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। सो अगर हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके समझें, सो वी कैन सी दैट ये दोनों रेजिस्टर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में हैं और ये तीनों रेजिस्टर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में हैं अगेन, राइट। बट अगर हम बात करें इनका रिजल्टेंट और इनका रिजल्टेंट की, तो इनका रिजल्टेंट और इनका रिजल्टेंट जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में हैं, राइट। तो सबसे पहले हम इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे, देन वी विल फाइंड आउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 3 रेजिस्टर्स। और जब हम इनको ऐड कर देंगे, ऐड करना मींस ऐड क्यों किया, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हैं, राइट। तो इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट को जब हम सीरीज के लिए सॉल्व करेंगे, सो वी विल फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ अब हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले R1 और R2 के लिए। तो R1 और R2 पैरेलल में हैं, तो वी नो दैट पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/R1 plus 1/R2. Since these two resistors are connected in parallel, so we have to write here R1 and R2 here. Now ये हो जाएगा 1/R dash is equal to 1/R1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 10 प्लस 1/R2 की वैल्यू हो गई आपके पास 40। यहाँ से अगर आप LCM लें, so you will get 40 here. न्यूमरेटर में आ जाएगा 4, डिनोमिनेटर में 4 प्लस 1, राइट। न्यूमरेटर में आ जाएगा 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 इज 5/40। यहां से R डैश की वैल्यू आपके पास आ गई 40/5। आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा और आपने जब इसको सॉल्व किया, सो यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ R डैश इज इक्वल टू 8 ओम। 8 ओम हो गया इसकी वैल्यू, मतलब R1 और R2 का जो टोटल है दैट इज इक्वल टू 8 ओम। ओके, नाउ सिमिलरली हम निकाल लेंगे R3, R4 और R5 इन तीनों का रिजल्टेंट। सो स्टूडेंट्स, वी हैव द फॉर्मूला 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। These 3 resistors we have got here. हम तीनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। So on putting these values we have got 1/R double dash is equal to 1/R3 की वैल्यू हो गई 30, R4 की वैल्यू हो गई 20 और R5 की वैल्यू हो गई 60। हमारे पास फॉर्मूला है, हमने फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं। Now on solving, what do we get from here? 30, 20 और 60 इन तीनों का अगर मैं LCM लूं, so I will get 60 here. 30 2 जा 60,
2 3 जा 60 और 60 1 जा 60, राइट. So I've got 2 plus 3 plus 1. अगर हम इसको सॉल्व करें, so I will get 1 by r double dash is equal to 6 by 60, or we can write it as 1 by 10. So 1 by r double dash is equal to 1 by 10. But this is the value of 1 by r dash. हमको चाहिए r double मतलब 1 by r double dash, हमको चाहिए r double dash की वैल्यू. तो आपने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, and you have got the value of r double dash is equal to 10 ohm, right? अभी भी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है. दिस इज द वैल्यू ऑफ आर डबल डैश ओनली. इसका मतलब आपके पास इसका रिजल्टेंट आया है, इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू आई है, राइट. अगर हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो वी नो दैट इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट ये दोनों सीरीज में है, राइट. तो जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस विल बी capital R is equal to R dash plus R double dash. Why we are adding them? Because they are connected in series, right? देख हो रहे हैं parallel, but अगर हम यहाँ से चलें तो करंट एक ही पाथ पे फॉलो कर रहा है, और जब करंट एक ही पाथ को फॉलो कर रहा है इसका मतलब all the resistance are connected in series, right? जब तक करंट को दो पाथ नहीं मिलेंगे ट्रैवल करने के लिए, तब तक जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो सब सीरीज में ही कंसिडर किए जाएंगे. ओके, so we are going to add these two terms here. ये हो जाएगा 8 plus 10, and 8 and 10 is 18 ohm. So we have got the value of resistance, that is the total resistance of the circuit. हमारे पास कितना आ गया, 18 ohm. This is the value of total resistance of the circuit. Now that is हमने ए वाला पार्ट सॉल्व कर लिया, हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया है, इट्स वैल्यू इज 18 ओम. नाउ सेकंड पार्ट हमसे पूछ रहा है टोटल वैल्यू ऑफ करंट, राइट. सो वी नो दैट स्टूडेंट्स, बाय ओम्स लॉ हमारे पास एक चीज क्लियर है, V इज इक्वल टू आई आर, राइट. आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू है, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी, 12, तो आई हैव रिटन 12 हियर. टोटल करंट मुझे निकालना है, दैट इज आई, और टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने अभी निकाली 18. तो यहां से आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन में 18. 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. अगर आप इसको सॉल्व करें सो यू विल गेट 0.67, राइट. 0.666 अगर आप उसको राउंड ऑफ करें तो यू विल गेट 0.67. So I is equal to हमारे पास आ गया 0.67 एम्पियर. This is the value of current that is flowing through the circuit, जो कि आपको given है उसमें. Okay. So in this way students we can solve the circuit diagrams. Now we will solve some more numericals that are not from the NCERT but from the other books, so that for practice purpose हम कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं. So how we are going to solve these numericals, that we will see here. Suppose one diagram is given to you such that now we have to find out, we have to solve this circuit, and we have to find out the total resistance of the circuit. Okay, आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है इस सर्किट का. यहाँ पे आपको 4 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं that are connected. Okay, how they are connected, this thing we have to determine. Okay, ये किस तरीके से कनेक्टेड है ये चीज हमको डिसाइड करनी पड़ेगी. इन चारों की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज 1 ओम 1 ओम 1 ओम एंड 1 ओम. ओके, सो देखने में तो हमको ये लग रहा है कि ऑल द 4 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर, राइट. बट अभी हमने डिस्कस किया था कि जब तक करंट एक ही पाथ पे ट्रेवल कर रहा है
तब तक जितने भी रेजिस्टर्स होंगे वो सीरीज में कंसिडर किए जाएंगे, राइट। इसका मतलब अगर दोनों रेजिस्टर्स का मतलब एक रेजिस्टर का एक एंड अगर दूसरे रेजिस्टर से कनेक्टेड है तो जो रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज में है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इस रेजिस्टर का ये वाला एंड इस रेजिस्टर से कनेक्टेड, सिमिलरली इस रेजिस्टर का दूसरा एंड तीसरे रेजिस्टर से कनेक्टेड, और इसका एक एंड इससे कनेक्टेड और इसका दूसरा एंड दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसका मतलब यहाँ पे सारे रेजिस्टर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके बनाऊं तो मैं इसको कुछ इस तरीके से भी बना सकता हूं कि ये सारे रेजिस्टर्स एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्ट हो गए, राइट। अब अगर हम इसको समझें तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट ऑल दीज फोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। So the total resistance will be equal to the value of individual resistance R1, R2, R3 and R4। हम मान लेते हैं ये हो गया R1, R2, R3 and R4, okay। So सारी वैल्यूज अगर हम पुट कर दें so we will get 1 plus 1 plus 1 plus 1 that is equal to 4 ohm, right। So जो total resistance है वो हो जाएगा 4 ohm। The question can confuse you क्योंकि क्वेश्चन में देखने से हमको लग रहा था कि ये सारे पैरेलल में हैं, बट एक्चुअल में अगर हमने इसको सिंप्लीफाई करके समझें तो जो रेजिस्टर्स हैं वो पैरेलल में नहीं होकर सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो दिस थिंग यू हैव टू डिटरमाइन कि एक्चुअल में रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं या सीरीज में कनेक्टेड है। वो चीज तब होगी व्हेन यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ओके। सो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बाय योर ओन। नाउ वन मोर न्यूमेरिकल वी कैन सी। Yeah, one more question is given to you here. In this question, 3 resistors are given to you जिनकी वैल्यू है 1 ohm और 2 टर्मिनल्स आपको दिए हुए हैं A और B, ओके। A और B आर द 2 टर्मिनल्स जिसके बीच में 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं जिनकी वैल्यू आपको गिवन है 1 ohm। You have to find out the value of total resistance in the circuit, and to find out the total value of the resistance in the circuit you should know that ये तीनों रेजिस्टर्स एक दूसरे के साथ सीरीज में है या पैरेलल में है, राइट। तो अगर मैं क्वेश्चन को जस्ट देखूं तो देखने से मुझे ये लग रहा है कि ये सारे रेजिस्टर्स एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड हैं, राइट। बट अगर हम इसको एक्चुअल में समझें तो इन सारे रेजिस्टर्स का एक एंड A से कनेक्टेड है और दूसरा एंड B से कनेक्टेड है, राइट। एज यू कैन सी इस पहले वाले का एक एंड A से कनेक्टेड और दूसरा एंड B से कनेक्टेड, राइट। सिमिलरली इस वाले का भी एक एंड जो है वो A से कनेक्टेड है बाय दिस वे एंड दूसरा एंड जो है वो B से कनेक्टेड है बाय दिस वे। सिमिलरली थर्ड वाले का भी एक एंड A से कनेक्टेड है लाइक दिस और सेकेंड एंड जो है वो B से कनेक्टेड है लाइक दिस, ओके, सॉरी लाइक दिस, ओके। सो इसका मतलब वी कैन कंक्लूड दैट ये तीनों रेजिस्टर्स कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि इनका एक एंड A से कनेक्टेड है और दूसरा एंड B से कनेक्टेड है। तो जब इनका एक एंड A से कनेक्टेड हो और दूसरा एंड B से कनेक्टेड हो तो हम इसको सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं लाइक दिस। ये हो गया A, ये हो गया B, इन सब की वैल्यू हो गई 1 ओम 1 ओम 1 ओम। अब अगर हम इसको इजीली देखकर समझ सकते हैं कि ये तीनों रेजिस्टर्स एक्चुअल में एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हैं, जबकि देखने से हमको ये लग रहा था कि ये सीरीज में कनेक्टेड हैं, राइट। तो पैरेलल के लिए यू नो द फॉर्मूला, इट इज 1 by r is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3। यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट कर दी, सो यू हैव गॉट 1 by r is equal to 1 by 1 plus 1 by 1 plus 1 by 1 और 1 by r is equal to 3। हमको चाहिए r की वैल्यू, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, सो यू हैव गॉट r is equal to 1 by 3
ohm. That is the total resistance of the circuit is taken to be 1 by 3 ohm. This is the value of total resistance. Okay. So the question can question can be doubtful. It can confuse you, but if you practice more and more number of questions, then it will be clear to you that when the resistors are connected in series and when they are connected in parallel. So this thing you have to determine by your own side, and that will be done by practice only. Okay, so you have to practice more and more number of questions based on this pattern. Okay, so that's all for today's class, students. The further topics we'll study in the next lectures. Thank you.